ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ نکل جا اس گھر سے، آئے روز کا یہی تماشا لگایا ہوا ہے۔ کون پالے گا تجھے؟ یہاں کیا سرکاری نوکریاں ہیں سب کی؟ اس کی چچی اس کا ہاتھ پکڑ کر نکالتے ہوئے بولی تو وہ رونے لگی۔ چچی آخری موقع دے دیں، میں جاب ڈھونڈ لوں گی اور آپ کو ہر ماہ پیسے بھی دیا کروں گی۔ میں کہاں جاؤں گی رات کے اس پہر؟ وہ روتی ہوئی التجا کر رہی تھی۔ میں تیری اب ایک بات نہیں سنوں گی کائنات، تو نے بہت ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ میرے پاس کون سے کمانے والے ہیں یا کوئی مرد ہے؟ کب تک تجھے پالوں میں؟ وہ غصے سے اس کا ہاتھ دروازے پر سے ہٹاتے ہوئے بولی، امی آپ ہی کو اندر آنے دینا، وہ جلد ہی جاب ڈھونڈ لیں گی۔ اس کی کزن نے اس کی حمایت میں کہا کہ وہ مشکور نظروں سے اپنی چھوٹی سی کزن کو دیکھنے لگی۔ آج آنے دیا تو کل بھی کوئی بہانہ ہوگا اس کے پاس۔ چچی کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ارے خالہ اسی لیے کہتا ہوں اس کو میرے ساتھ بیاہ دے، لیکن تو سنتی کہاں ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کائنات کو دیکھتے بولا کہ چچی نے اسے گھور کر دیکھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ گلی محلے میں اس وقت بس آوارہ لڑکے پھرتے تھے۔ ان آوارہ لڑکوں میں اعجاز بھی تھا جس کی نظریں کائنات پر ٹکی رہتی تھیں، اور وہ کائنات کی چچی سے اس کا ہاتھ بھی مانگ چکا تھا جسے انہوں نے رد کر دیا تھا۔ تیری جیسے آوارہ سے شادی کروں؟ کہیں کتے کی موت پڑا ہوگا اور یہ آفت ہمارے سر دوبارہ نازل ہو جائے گی۔ اس کی چچی نے صاف لفظوں میں یہی کہا تھا۔ اس کی ماں نے گھر آ کر اعجاز کو خوب سنائی تھی، جس پر اس نے کہہ دیا تھا وہ کائنات سے ہی شادی کرے گا۔ اب بھی وہ لالچی نظروں سے کائنات کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ چچی نے اس کا ہاتھ تھام کر اندر کر کے گیٹ بند کر دیا۔ اس کتے کی نظروں کو چیل کھا جائے۔ اس کی چچی کائنات کو دیکھتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ماہم نے کائنات کو گلے سے لگا لیا۔ آپی آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کائنات کی ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آج بچ گئی لیکن لگتا ہے روز نہیں بچوں گی۔ اس نے گہری سانس بھر کر چچی کے کمرے کی جانب دیکھا۔ وہ سلائی کر رہی تھی۔ ان کے اوپر 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی، اوپر سے کائنات کافی سالوں سے ان کے در پر پڑی تھی۔ باپ دوسری شادی کر کے چلتا بنا تھا اور وہ تنہا یہاں رہ گئی۔ اس نے نہ تعلیم حاصل کی نہ ہی کہیں اسے جاب ملی۔ وہ کافی سالوں سے در در کی ٹھوکر کھا رہی تھی۔ میں نوکری ڈھونڈ لوں گی، وہ خود سے عہد کر کے بولی۔ ماہم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جا کر سو جاؤ ماہم، چچی غصہ کریں گی، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ اس نے محبت سے اس کا چہرہ چومتے ہوئے کہا اور بوسیدہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ وہ چھت پر چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس ٹچ موبائل بھی نہیں تھا۔ کی پیڈ موبائل کو دیکھتے سوچ رہی تھی کون ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ زرین مجھے جاب کی ضرورت ہے، جیسی بھی جاب ہو مجھے لازمی بتانا۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور آنکھیں بند کر کے سونے لگی۔ کچھ وقت بعد اسے نہ مچھروں کے کاٹنے کا ہوش رہا اور نہ ہی اندھیرے کا خوف۔ وہ بے سدھ سارے دن کی مشقت کے بعد سو چکی تھی۔ چچی نے اپنی 3 بچیوں کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ اسے جاب کرنی ہوگی ورنہ اسے کل گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ پائی پائی کی محتاج ہو گئی ہوں میں۔ اس کی چچی نے سونے سے پہلے کائنات کو گھر سے باہر نکالنے کا عہد کر لیا تھا۔ صبح ہوئی تو کائنات کی آنکھ مکھیوں کی وجہ سے کھل گئی۔ اس نے سورج کی روشنی محسوس کر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں کھولی۔ صبح ہو گئی۔ اس نے موبائل میں وقت دیکھا، 6:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ وہاں ان باکس میں کسی کا میسج بھی تھا، آج ملنا 10 بجے تک۔ اس نے ایڈریس سینڈ کیا اور کائنات نے شکر کا سانس لیا کہ اسے کہیں سے کوئی آسرا تو ملا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس جاب کے چکر میں وہ کہاں پھنسنے والی ہے۔ لڑکی کان کھول کر سن لے، آج جاب نہ ملی تو تیرا سامان باندھ دیا ہے، وہ لے کر چلی جانا۔ چچی نے بندھی گٹھڑی کی جانب اشارہ کر کے حتمی انداز میں کہا۔ چچی مجھے جاب مل جائے گی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اسے یقین تھا اس کی دوست نے ضرور جاب ڈھونڈ لی ہوگی، اسی لیے اسے ملنے بلایا تھا۔ جا پھر اور مجھے اچھی خبر دے۔ انہوں نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر ہی اس پر چلانا شروع کر دیا اور اپنی 3 بچیوں کو ناشتہ کروا کر باہر لے گئی تھی۔ وہ انہیں رکشے میں بٹھانے جا رہی تھی۔ انہیں لینے اور چھوڑنے رکشہ آتا تھا۔
कायनात ने जल्दी से मुंह हाथ धोया और कपड़े निकाले। वो नाश्ते के बिना 9 बजे के करीब घर से निकल गई थी। उसने सीधा जरीन के स्कूल का रुख किया था जहां वो टीचर थी। बैठ जाओ कायनात, तुम जल्दी आ गई हो, ब्रेक टाइम में तुमसे मिलती हूँ। उसने कायनात को देखा और मुस्कुराती हुई बोली। एक टीचर पीछे से चली आई। यही वो लड़की है? उस टीचर ने सर ता पैर कायनात को देखते हुए पूछा। हाँ, वो इसे देखकर मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत है। कायनात उसकी साजिशों से बेखबर तजब्जुब की हालत में बैठी थी। 1 घंटे बाद जरीन और उसकी दोस्त वहां चली आई। कैसी हो? जरीन ने उसकी जानिब चाय की प्याली रखी। ठीक हूं, प्लीज आज ही जॉब दिलवा दो, उसने बेसब्री से कहा। वो बेघर होना नहीं चाहती थी, उसे एजाज से खतरा था। एक जगह है, वहां तुम्हें सर्विंग करनी होगी, उसने बात का आगाज किया। जहां भी है बस जगह बता दो, मैं चली जाऊंगी, उसने हाथ मसलते हुए बेचैनी से कहा। उसे जॉब डालने में दिलचस्पी नहीं थी। उस जगह रात 8 बजे चली जाना, रात की जॉब है, सुबह ऑफ होगा। जरीन ने उसकी जानिब कार्ड बढ़ाया जहां एड्रेस लिखा हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जरीन, उसने उठते हुए बेहद मशकूर लहजे में कहा कि वो मुस्कुरा दी। इन दोनों ने उसके जाते ही एक दूसरे को देखा और हंस पड़ी। हमारा काम हो गया, ऐश करेंगे अब, जरीन की दोस्त ने कहा तो जरीन हंस पड़ी। कायनात जैसी और बहुत सी बेवकूफ़ मिल जाएं तो हमारे अमीर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जरीन ने हंसते हुए लालची फितरत को ना छोड़ा। वो भी इस बात में सर हिलाने लगी। उसे कायनात की खूबसूरती बहुत भाई थी। कायनात वापस घर आई तो उसकी चच्ची उसकी जानिब लपकी। बिना जॉब ढूंढे आज फिर लौट आई? उन्होंने इसका बाजू मरोड़ते हुए पूछा। चच्ची, जॉब मिल गई है, रात 8 बजे जाना है, सर्विंग की जॉब है, शायद कोई होटल है, उसने दर्द से कराते हुए जल्दी से बता दिया। सैलरी क्या है? उन्हें तफसील जानने में दिलचस्पी नहीं थी, बस पैसे चाहिए थे। 40,000 है स्टार्टिंग, और अगर अच्छा काम किया तो बढ़ जाएगी। उसने जरीन से पूछ लिया था सैलरी का, इसलिए उन्हें बताने लगी। गुड, इस जॉब को बिल्कुल मत छोड़ना, भले तुम अपनी जान दे दो। उसकी चच्ची सख्त दिल बनती हुई उसे घूरती चली गई। उन्हें घरों में काम करने जाना था। जरीन, होटल में और भी लड़कियां हैं ना? उसे अकेले होने का खौफ होने का एहसास हुआ तो जरीन से फोन करके पूछने लगी। नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं और सब तुम्हारी ही तरह मजबूर हैं, लेकिन एक दिन परेशानी के बाद खुशी से काम करने लगती हैं। तुम्हें भी बस पहले दिन परेशानी होगी, उसने तसल्ली देते हुए कहा तो कायनात खुश हो गई कि बस नई जॉब की वजह से परेशानी के अलावा सब ठीक ही होगा। वो रात 7 बजे तैयार होकर बाहर निकली। उस वक्त उसकी चच्ची घर में घुस रही थी। इस होलिये में पहले दिन जॉब पर जाएगी तू, वो लोग निकाल देंगे, उसे बिल्कुल सीधा सादा देखकर चच्ची ने सुनाई तो वो हैरान हुई। जाकर अपने चेहरे पर लेपा पोती कर। चच्ची की बात सुनकर वो नफी में सर हिलाने लगी। जा कायनात, सर्विंग की जॉब में लड़कियों का खुश शक्ल होना अच्छा है, उसकी चच्ची ने उसे भूत बने खड़े देखकर कहा तो जाना ही पड़ा। वो कुछ देर बाद लिपस्टिक और हल्का सा मेकअप करके निकल गई। चच्ची को शायद उसका मेकअप अब भी कम लग रहा था, इसीलिए उसने चच्ची को दिखाना मुनासिब नहीं समझा। वो रिक्शा लेकर उस जगह पहुंच गई। वहां बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था। उसने बार के अंदर कदम रखा तो उसका सर घूम गया। तुम कायनात हो? एक लड़की ने उसे देखते हुए पूछा तो वो इस बात में सर हिलाती सोच रही थी, अंदर जाए या बाहर भाग जाए। वहां आ जाए, उसने इसका हाथ थामा और अंदर ले आई। इस जॉब पर भी तुम्हें रखा गया है, शुक्र अदा करो, वरना अनपढ़ को आजकल जॉब कौन देता है। इसकी उड़ी हुई रंगत देखकर वो लड़की बड़े खुलूस से उसके कंधे थामे कह रही थी, मुझे ये जॉब नहीं करनी। वो लरसते हुए पीछे होने लगी। यहां कदम रखने का मतलब है तुम इस दुनिया का हिस्सा बन गई हो। अगर यहां से भागी तो गार्ड तुम्हें घर से उठा लाएंगे। जाहिर है फिर तुम्हारे साथ उन्हें भी ये जॉब करनी पड़ेगी जहां तुम रहती हो। यहाँ के लोग खतरनाक हैं, लड़कियों को जाने नहीं देते। उसने बार के कपड़े कायनात की जानिब बढ़ाए थे। मैं नहीं पहन रही। वो भागने लगी जब उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। जिद करने की जरूरत नहीं,
अभी बड़े लोग आते होंगे, उन्हें सर्विंग करनी है, जल्दी तैयार हो। वो उसकी जानिब ब्लैक एंड वाइट शर्ट स्कर्ट भरहाते हुए बोली, जो उसने खुद भी पहन रखी थी। कायनात रोती होती चेंजिंग रूम में आ गई। उसने कपड़े चेंज किए। बाहर से मुसलसल दरवाज़ा बजाया जा रहा था। बाहर निकली तो उस लड़की ने इसे शराब की बोतलें और गिलास थमा दिया। ये उन सबको सर्व करके आओ। उसने इशारे से गनमैन्स की जानिब इशारा किया तो लबों पर जबान फेरने लगी। उनकी शक्ल पर लिखा था, वो आम लोग नहीं है, वो सब बड़े बड़े गैंग से ताल्लुक रखते थे। वहां नई लड़की को देखकर उन सब की बातें फैल गई। आज नया चेहरा आया है सामने। कुछ गैंगस्टर उसे देखकर खुश हुए थे। वहीं एक गैंगस्टर बैठा उसे देख रहा था। इस लड़की को मेरे कमरे में भेज देना। वो दूसरी लड़की से शराब का ग्लास लेकर बोला। वो लड़की मुस्कुरा दी। कायनात के हाथ कांप रहे थे। वो वापस क्लब के अंदरूनी हिस्से में आई तो ठंडे सांस लेने लगी। सिकंदर हयात के कमरे 101 में जाओ। उसने 2 बोतलें इसकी जानिब बढ़ाते हुए हुक्म सादिर किया। मैं किसी के कमरे में नहीं जाऊंगी। उसने फौरन से बेशतर रद्द कर दिया तो वो लड़की इसे घूरने लगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जो तुम्हारी बोटियां तक नोच लेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम सिकंदर हयात के कमरे में चली जाओ और थोड़ी सी इज्जत खराब कर लो। उसकी बात सुनकर कायनात ने नफी में सर हिलाया। वो लड़की इसे जमकर खड़े देखकर आगे बढ़ी और उसे घसीटते हुए लिफ्ट में ले आई। सिकंदर हयात के कमरे के बाहर रुककर उसने बेल बजाई तो दरवाज़ा खुला। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर देखा और हाथ खींचकर अंदर कर लिया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, प्लीज मुझे जाने दें। वो अंदर आते ही कांपती हुई आवाज में बोल रही थी। ये तुम्हें सोचकर आना चाहिए था लड़की, तुम किस जगह पर आई हो? उसने आंसू बहाती हुई कायनात को देखकर तंजिया कहा तो वो डर के मारे दरवाजे के जानिब भागी। वो एक नाजुक कांपता वजूद देखता एक पल को मबहूत जरूर हुआ था। वो रोती बिखरी हालत में दरवाजा पीट रही थी। मैं जॉब के लिए आई थी, सच्ची कसम ले लें, कोई बुरे काम से नहीं। मुझे नहीं पता यहां बुरे लोग आते हैं। वो रोते हुए दरवाजा जोर जोर से पीट रही थी और ऊंची आवाज में रोते हुए उसे अपनी दास्तान भी सुना रही थी। वो उसके करीब आया। तो क्या मैं बुरा हूं? वो रोते हुए मासूमियत से बोल रही थी। सिकंदर हयात ना जाने क्यों इस लड़की की मासूम अदा पर पूछने से खुद को रोक ना पाया, वरना वहां आया था। जाहिर सी बात थी, वो कौन सा अच्छे इंसानों में से शुमार होने वाले काम करता था। बुरे हैं जब भी तो एक लड़की को इतनी रात को कमरे में बुलाया है। वो उसकी जानिब देखे बिना बोली तो सिकंदर हयात के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और नशा भी उतरने लगा। तुमने मेरा नशा चंद मिनटों में उतार दिया। उसने कायनात की कलाई थामी और कमरे के वस्त में ला छोड़ा। मैं प्लीज आपको कुछ नहीं दूंगी। वो हाथ से एक्स बनाए अपने सीने पर रखे दूर हो रही थी। मैंने तुमसे कुछ मांगा है क्या? उसने कायनात से पूछा। मैं शोर करूंगी। वो दोबारा उसकी मासूम सूरत देखकर करीब आ रहा था। उसने कायनात की लबों पर उंगली रख दी। यहां जॉब करने लगी हो, अगर आज की रात गुजारकर अगले दिन से जॉब छोड़ भी दो तो ये लोग तुम्हें वापस यहां ले आएंगे। लिहाजा जिस काम के लिए रखी गई हो वो करती रहो। मैं एक नामवर गैंगस्टर हूं, मुझसे पंगा लेने के बारे में 1000 बार सोचना। सिकंदर हयात ने देख लिया था कायनात गुलदान की जानिब बढ़ रही थी ताकि उसका सर फाड़ सके। उसने कायनात का इरादा भांप कर उसकी कलाई पकड़कर सब कुछ बिल्कुल सच्चाई के साथ बता दिया। उसके हाथ कायनात की गर्दन पर रेंग रहे थे और अचानक वो बेहोश होकर उसके बाजुओं में झूल गई। प्रीटी गर्ल। वो मुस्कुराकर उसके वजूद को बाहों में भरे बिस्तर पर डालकर वहीं लेट गया। कायनात की सुबह आंख खुली तो उसने बराबर में देखा सिकंदर हयात बिना शर्ट के लेटा हुआ था। उसने खुद को देखा, वो रात वाले होलिये में थी। उसको खुद महसूस हुआ वो जरूर उसके साथ कुछ कर चुका था। कायनात आहिस्ता से उठकर जाने लगी जब सिकंदर हयात ने उसकी कलाई थाम कर खींच ली और वो कटी पतंग की तरह लहराती हुई उसके ऊपर आ गिरी। शाम में जब वापस यहाँ आओगी इसी कमरे में मुझसे मिलना, वरना आज की रात किसी और के कमरे में गुजारनी पड़ेगी। बेहतर है एक ही से ताल्लुक रख लो। वो उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े उसे देखने लगी। तो तुमने मेरे साथ?
उसके आंसू सिकंदर हयात के चेहरे पर गिर रहे थे। वो साकित पड़ा इसकी बहती आंखों का सयाल देख रहा था। मैंने वही किया जिसके लिए तुम मेरे पास आई थी, और ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो। जैसा कहा है वैसा करो। ये लोग तुम्हें उठा लाएंगे, तुम्हारे घर से भी। भागने की कोशिश मत करना। जहां छुप सकती हो वहां भी छुपने की कोशिश मत करना। अब तुम सिकंदर हयात की नजरों में आ गई हो। याद रखना, 2 लोग तुम्हारे पीछे हैं। उसने धमकी देते हुए उसे बिस्तर पर फेंका और सर हाथों में गिराए उठ बैठा। उसकी कमर पर टैटूज बने हुए थे। कायनात को खौफ महसूस होने लगा। वो वाकई आम लोगों का काम नहीं कर रही थी, वो गलत लोगों के बीच फंस गई थी। उसने गर्दन मोड़कर कायनात को देखा। क्या मेरे साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है रहना? उसकी बात सुनकर कायनात जल्दी से कमरे से भागी। वो हील्स पहनना भी भूल गई थी और वो घूमते सर को थामे हैंगओवर की वजह से परेशान था। उसने कॉल करके स्टाफ से हैंगओवर दूर करने का कहा। वो जल्द ही उसके लिए मुख्तलिफ महलूल ले आए थे। कायनात चेंजिंग रूम में बैठी रो रही थी। मेरी जिंदगी बस एक मजाक है। वो रोती हुई उठ खड़ी हुई। बाहर आई तो सिकंदर हयात अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। उसे देखकर ठहर गया, फिर मुस्कुराकर 2 उंगलियां माथे पर ले जाकर बाएं का इशारा किया। वो घर पहुंची। चच्ची इसी का इंतजार कर रही थी। पैसे नहीं मिले, इतनी देर तक काम करवाया है। उन्हें फिक्र नहीं थी कि वो कैसी है, काम मुश्किल था कि आसान। उन्हें बस पैसों से गर्ज थी। कायनात ने पर्स से सारे पैसे निकालकर उनकी जानिब बढ़ा दिए और उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। 1000 के काफी सारे नोट उनके हाथ में थे। वाह भाई, बहुत अच्छी जॉब है। ये कुछ पैसे तुम रख लो, जाओगी कैसे फिर? उन्होंने 2000 कायनात को वापस करते हुए कहा तो वो उन्हें देखने लगी। उनके चेहरे पर फैली खुशी इसके लिए खुशी का बायस नहीं बनी थी। वो कमरे में आए, दरवाजे और खिड़की बंद कर गई। कमरे में सुबह के वक्त भी अंधेरा छा गया था। उसने खुद को शीशे में देखा। मुझे क्यों याद नहीं उसने मेरे साथ क्या किया था? वो शीशे में खुद को देखती सवाल कर रही थी। उसकी बातें दिमाग पर हथौड़े की मानिंद बरस रही थी। वो बेचैनी से सिसकी रोके बैठ गई। वो 22 साल की थी और उसे दुनिया के बारे में इतना मालूम भी नहीं था। वो जिंदगी में पहली बार इतने सारे गैंगस्टर से एक साथ मिली थी और एक गैंगस्टर के साथ वो पूरी रात भी रही थी। उसने जरीन को कॉल की। कॉल जा रही थी और कुछ मिनट बाद उठा ली गई। तुमने मुझे कैसी जगह भेज दिया जरीन? वो रोती हुई बोली तो जरीन की बेजार सी आवाज उसके कानों से टकराई। तुमने जॉब का कहा था, ये नहीं बताया था कैसी जॉब है, और जॉब छोड़ने का सोचना भी मत। तुमने वहां बहुत कुछ देख लिया है। तुमने जॉब छोड़ दी तो वो तुम्हारे पूरे घर को उठा ले जाएंगे और उनसे धंधा करवाएंगे। वो भी वही बात कह रही थी जो सिकंदर हयात और उस लड़की ने कही थी, यानी वो लोग वाकई वहां जाने वाले को कब्र तक नहीं छोड़ते थे। उसे अपनी 3 मासूम कजन्स के चेहरे याद आए तो वो बेबस हो गई। मैं क्या करूं? उसे लग रहा था वो रो रो कर पागल हो जाएगी। करना क्या है? जॉब करो और पैसे कमाओ। मैं तो बड़े लेवल पर आ गई हूं। अब मैं क्लब 5 में काम करती हूं। उसने बड़ी अदा से यूं बताया जैसे वो कोई बहुत अच्छा काम करती हो। तुम कैसे? वो लरसती आवाज में इससे पूछने लगी। तुम्हारी तरह मजबूरी यहां खींच लाती है। बस मैं खूबसूरत नहीं हूं तो सर्विंग का काम करती हूं। मेरी इज्जत मेरी सांवली रंगत ने बचा ली। उसके मुस्कुराते लहजे को सुनकर कायनात ने कॉल बंद कर दी। वो उसका मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी। गुड लक, उसने मैसेज करके कहा। कायनात नींद की दवा लेकर सो गई। शाम 5 बजे दरवाजे की आवाज सुनकर वो उठी थी। कायनात, दरवाजा खोल। चच्ची गुस्से से दरवाजा पीटते चीख रही थी। आई चच्ची। उसने घूमते सर को थामा और दरवाजा खोला। 5 बज गए हैं। चल खाना खा, नहा धो, क्या हुलिया बनाया हुआ है, और 7 बजे निकल जाना जॉब के लिए। वो उसे मुस्कुराते हुए देखती हिदायत दे रही थी। पैसा भी कैसी चीज है, जिनसे नफरत हो अचानक उनसे मोहब्बत करवा देता है। चच्ची अभी वक्त है, मैं तैयार हो जाऊंगी, उसने बेदिली से कहा और लेट गई। कायनात, अगर ये जॉब छोड़ी तो इस दरवाजे पर कदम मत रखना।
उन्होंने जाते हुए इसे धमकी देना जरूरी समझा। मेरी किसी को परवाह नहीं, वो गैंगस्टर न जाने आज मेरे साथ क्या करेगा। वो रोहांसी हो गई। उसने दिल मारकर चच्ची की जिद पर खाना खाया और तैयार होने लगी। उसे तैयारी की क्या जरूरत थी? SH ने उसे पिक कर लिया। उसे बस इसके कमरे में जाना था, उसके साथ टाइम गुजारना था और वापस आ जाना था। वो गहरी सांस लेकर चच्ची की घूरती नजरों की वजह से तैयार होकर बाहर निकल गई। वो आज बहुत घूम फिर कर आई थी कि उसे कुछ हो जाए और क्लब ना जाना पड़े, लेकिन नताशा की कॉल ने उसे जाने पर मजबूर किया। वो 9 बजे के करीब वहां पहुंची, ड्रेस चेंज किया और क्लब में आए लोगों को ड्रिंक्स देने लगी। इस लड़की को हमारे साथ भेज दो, एक गैंगस्टर ने उसे ललचाई नजरों से देखते हुए कहा। ये लड़की बुक है। सिकंदर हयात की आवाज सुनकर वो पीछे पलटी तो वो इन सबको घूर रहा था। अरे अपने जिगर की है ये, उन सब ने मुस्कुराते हुए कहा और शराब नोशी में मसरूफ हो गए। चलो, उसने कायनात की कमर थामी और ट्रे उसके हाथ से लेकर टेबल पर रख दी। नताशा ने उसे अंगूठा दिखाया। वो लरसती हुई कमरा नंबर 101 में आ गई थी। आप यहां रोज आते हैं? उसने कमरे में आने के बाद पूछा। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आप भी इन सब की तरह बुरे काम करते हैं? उसने इतने डिसेंट शख्स को देखकर अफसोस से पूछा। हाँ, वो उसकी जानिब देखते सोफे पर पांव उस पर पांव चढ़ाए बैठा था। आप ड्रिंक लेंगे? उसने वहां से हटने के लिए पर तोले। वो उठकर इसके पास से गुजरते हुए आगे चला गया। कायनात का एक पल को सांस रुक गया। वो फ्रिज से ड्रिंक की बोतल निकाल रहा था। ये रही ड्रिंक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके तमाम मंसूबे नाकाम हो रहे थे। यहां तक कैसे पहुंची? उसने कायनात को बैठने का इशारा करते पूछा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्त से नौकरी की दरख्वास्त की, उसने यहां भेज दिया। इसने सब सच सच बता दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। दोस्त क्लब 5 में तो नहीं है? उसने बराह रास्त अहम सवाल पूछा। हाँ, इसकी आंखों में हैरानी उभर कर आई थी कि उसे कैसे पता चला। क्लब 5 की लड़कियां अमूमन इनके काम को बढ़ाने के लिए लड़कियां फराहम करती हैं, इसीलिए अंदाजा लगाया। उसकी हैरत से फैली आंखों पर सिकंदर हयात ने वजाहत दी तो वो गर्दन हिलाकर खामोश हो गई। वो मुसलसल इसे देख रहा था। उम्र क्या है? उसने ड्रिंक का ग्लास मुंह से लगाया हुआ था और कायनात का इंटरव्यू ले रहा था। 22, उसने थूक निगलते हुए बताया और उसकी हरकत पर सिकंदर हयात के लब मुस्कुराए। बेफिक्र रहो, यहां उम्र का नहीं खूबसूरती का दाम है और तुम्हें यहां के लोग हाथों हाथ लेंगे। वो उसे बावर करा रहा था कि अगर वो उस कमरे में ना भी लाई गई तो भी वो किसी और कमरे में होगी। मैं यहां से कैसे निकलूं? आप कल यूज कर चुके हैं मुझे, प्लीज अब ऐसा ना करें, मुझे बचा ले। वो रोने लगी थी। सिकंदर हयात उठकर उसके पास आ खड़ा हो गया। ये लोग तुम्हें क्लब 5 में भेज देंगे। यहां से बचना नामुमकिन है जब तक इनका खुद का खात्मा ना हो जाए। यहां आने की गलती की है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम बस मेरे ना होने पर भी यहां कमरे में आ जाना। ये लो मेरी चाबी। उसने इसके हाथ में चाबी देते हुए कहा तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। वो इसके चेहरे पर नजरें टिकाए खड़ा था। फिर अचानक उसने कायनात को बेड पर धक्का दिया। मेरी नरमी का ये मतलब मत लो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। उसने कायनात के फड़फड़ाते लबों को देखते झुककर कहा। वो खौफजदा होकर देखने लगी। वो झुककर उसके बिल्कुल चेहरे के करीब आ गया था। इसकी फैली आंखों को देखकर वो इसकी आंखों पर न जाने क्या तलाश कर रहा था। डर गई? कल की रात मेरे साथ गुजारी थी, बस तुम्हें थोड़ा सा नशा करवाया था। वो उस बेड पर दोनों हाथ की हथेलियां रखे उस पर झुका हुआ था और वो पूरी तरह छुपी हुई थी। वो नाजुक सरापे वाली और वो बॉडी बिल्डर जैसा बंदा। मैं आज कोई नशा नहीं करूंगी। वो नफी में सर हिलाते रो रही थी। फिर तुम्हें ये सब कैसे भूलेगा? याद रखोगी तो पागल हो जाओगी मासूम लड़की। वो उसकी नाक को दबाते हुए बोला। मैं आप कुछ ना करें प्लीज। वो बुरी तरह लरस रही थी। सिकंदर हयात ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी। लेकिन मैं चाहता हूं तुम कुछ याद ना रखो, वरना वाकई पागल हो जाओगी। वो उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला।
اس کے ٹھنڈے لبوں نے جیسے کائنات کی گردن کو چھوا، وہ بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پریٹی گرل، تمہارے ساتھ گزرے لمحے تمہیں یاد نہیں رہنے چاہیے۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بال ہٹاتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا، پھر اس نے ساری لائٹس آف کر دی۔ وہ صبح اٹھی تو اس کا جسم کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں پوری کھول کر دیکھا تو سکندر حیات کا ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا۔ اس نے دیکھا اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی سکندر حیات اسے بے ہوش کر کے کیا کرتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ صبح ہی اٹھتی تھی، بیچ میں بھی رات کو نہیں اٹھتی تھی، جو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ 2 راتیں اس نے کائنات کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ وہ اب اس سے خوف زدہ ہونے لگی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی سسکی کی آواز سن کر سکندر حیات اٹھا۔ کیا ہوا؟ صبح صبح رونا دھونا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس نے گھومتے سر کو تھامتے ہوئے پوچھا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ اس کے پاس آتی اس کے کندھے پر ناخن گاڑتے ہوئے بولی۔ یار ویسے ہی شرٹ لس ہوں، اوپر سے تمہارے نوک دار ناخن۔ رات بھی تم نے میرے سینے پر ناخن مارے تھے، یہ دیکھو۔ وہ اسے بڑے دھڑلے سے اپنا سینہ دکھاتے بولا اور کائنات کی آنکھیں پھٹ گئی۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ وہ پاگل ہونے کے قریب تھی۔ کیونکہ میں تمہیں نشہ کرواتا ہوں جسے تم سب بھول جاتی ہو۔ وہ لیٹے لیٹے ہی سب باتیں کر رہا تھا۔ کائنات اس کی جانب رخ کیے بیٹھی تھی۔ پلیز اپنا حلیہ درست کرو ورنہ پھر شکایت مت کرنا، اس نے کائنات کی جانب سے رخ پھیرتے کہا تو وہ فوراً واش روم میں بھاگ گئی۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ واش روم سے باہر آتے ہی دوبارہ اس کے پاس آتی پوچھنے لگی۔ جب تک تم میرے پاس ہو، وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا لگا کر بولا تو کائنات زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میرا تم نے سب کچھ چھین لیا ہے سکندر حیات، تم بہت برے ہو۔ وہ اس معصوم لڑکی کو روتے دیکھ کر بیڈ سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ زمین پر 2 زانو بیٹھا۔ اس نے کائنات کا چہرہ انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ ہو تم، وہ اسے سختی سے کہہ رہا تھا۔ کائنات نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کسی کے ساتھ بھی ہوں، عزت تو ختم ہو گئی نا؟ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولی۔ کسی میں اور مجھ میں فرق ہے۔ یہاں کے مرد روز عورت بدلتے ہیں اور میں نے بس تمہیں یہاں کی رسائی دی ہے۔ کیا تم چاہو گی تم ہر روز الگ الگ مرد کے پاس جاؤ؟ اس کی بات سن کر کائنات کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ پلیز آپ روز یہاں آنا، ایک دن بھی ناغہ مت کرنا، ورنہ یہ لوگ مجھے کسی اور کے آگے پھینک دیں گے۔ اس کی بات سن کر سکندر حیات نے گہری سانس لی۔ گڈ گرل، بات جلدی سمجھ جاتی ہو۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر پیچھے ہوا تو کائنات نے اس کا لمس مٹانے کے لیے ماتھا مسل دیا۔ وہ کہا لگا کر ہنسا۔ میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کائنات کہ تم یہ حرکت کر کے پچھتاؤ گی، لیکن چھوڑو، جانے دو۔ وہ مسکرا کر واش روم چلا گیا اور اسے جاتے ہوئے اسٹاپ پر ڈراپ کر گیا۔ وہ آج بھی اچھے خاصے پیسے لائی تھی۔ چچی ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور وہ لرزتی روتی پیٹ رہی تھی کہ اس کی زندگی اس پر ایسا ستم کیوں کر رہی ہے۔ ایک جاب ہی تو چاہیے تھی، اور وہ بھی ایسی نہیں جیسی وہ کر رہی تھی۔ عزت کی نوکری جہاں وہ مطمئن ہوتی۔ سکندر حیات کے بارے میں سنا تھا، وہ بہت خطرناک گینگسٹر تھا۔ وہ وہاں پہلے ہر روز نئی لڑکی کو کمرے میں بلاتا اور بہت زیادہ نشہ کرتا۔ وہ سب سکندر کے وہاں سے جانے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ جائے اور کائنات کو وہاں کے باقی لوگ قریب سے دیکھ سکے۔ کائنات کو سکندر پر بھی غصہ آتا تھا اور وہ احسان مند بھی ہوتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی روز وہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسے نشہ کرواتا ہے۔ ایسا کون سا نشہ تھا کہ وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو جاتی اور رات میں ایک بار بھی آنکھ نہیں کھلتی؟ اس کا سینہ اچانک کائنات کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اس نے جھرجھری لی۔ اس کے چوڑے سینے پر کائنات کے ناخن کے بہت سارے نشان تھے۔ وہ اپنے ناخن دیکھنے لگی اور نیل کٹر اٹھا کر اپنے سارے ناخن کاٹ دیے۔ اب اس کی یہی زندگی تھی۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو بھی کندھے تک کاٹ دیا۔ آنسو صاف کر کے لیٹ گئی۔ وہ سوتی رہتی تھی۔ سکندر حیات بھی سلائی رکھتا تھا اور گھر آ کر وہ میڈیسن لے کر سو جاتی۔ وہ شام میں بنا چچی کی گھوری کے تیار ہو گئی۔
جلدی سے کلب آئی اور سکندر حیات کے کمرے کی چابی سے دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ اس نے اندر سے کمرہ لاک کر لیا تھا۔ سب جانتے تھے سکندر حیات کی پرسنل لڑکی ہے۔ کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے آج کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ گھر سے سادہ سے شلوار سوٹ میں آئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار پھینکا تھا۔ اس کے ساتھ 2 راتیں گزارنے کے بعد کون سا پردہ بچا تھا؟ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کی سیلنگ کو دیکھ رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب سکندر حیات کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر رکا، پھر آگے بڑھ آیا۔ اس کے آنے پر بھی کائنات کے وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا۔ آج خود سے آ گئی؟ خیریت؟ وہ اس کی جانب دیکھتے جوتے اتارتے سوال پوچھ رہا تھا۔ آج جو کرنا ہے وہ ہوش میں رکھتے ہوئے کرنا، اس نے 2 ٹوک لہجے میں سکندر حیات سے کہا تو اس کے تسمے کھولتے ہاتھ رک گئے۔ یادداشت کا رہ جانا اذیت ہوتی ہے، اس نے بنا اس کی جانب دیکھتے کہا۔ میں ویسے ہی اذیت میں ہوں، یہ اذیت بھی صحیح۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ چند پل سکندر حیات اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی شرٹ اتار پھینکی اور اس کی جانب چلایا۔ وہ لرزتے ہوئے دور ہونے لگی۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا اور وہ سانس روکے اس کی پشت پر ناخن مارتے اسے ہٹا رہی تھی۔ پلیز مجھے بے ہوش کر دو، پلیز۔ وہ خود اس سے التجا کرنے لگی۔ سکندر حیات نے چہرہ اٹھا کر اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور بے ہوش کرنے سے پہلے اسے اپنی گردن پر کچھ محسوس ہوا تھا۔ ساتھ سکندر حیات کا اپنے گانوں پر دہکتا لمس۔ اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سکندر حیات نے نفی میں سر ہلا کر اس کی گردن سیدھی کی۔ کہا تھا تمہیں یہ سب برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ اس کے بے ہوش وجود پر نگاہ ڈال کر سرگوشی کرنے لگا۔ اس دن کے بعد سے کائنات نے کبھی ہوش میں رہنے کی ضد نہیں کی۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ کائنات رونے اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی چچی پیسوں کی بہار پر خوش تھی اور نہ ہی کائنات کی زردی مائل رنگت کی پرواہ ہوتی تھی۔ وہ دکھ سے ہارنے لگی تھی۔ اس دن اس نے سکندر حیات سے دور رہنے کو کہا تھا۔ وہ بات سمجھ کر بنا اسے بے ہوش کیے اسے باتیں کرتا رہا۔ وہ بیڈ پر جبکہ وہ صوفے پر بیٹھا بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے وہاں کے بڑے بڑے گینگسٹر کے نام بتائے تھے اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا کیا غلط کام کرتے ہیں۔ کائنات نے اس سے پوچھا وہ یہاں آنے کے علاوہ اور کون سا غلط کام کرتا ہے۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، ہر وہ کام جو ایک گینگسٹر کر سکتا ہے۔ 3 دن کائنات نے اس سے باتیں کر کے گزاری۔ کائنات اس کی احسان مند تھی کہ وہ بنا قریدے بات سمجھ جایا کرتا تھا۔ 10 دن گزر گئے تھے۔ 11ویں دن وہ کمرے میں آئی۔ 12 تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ نہیں آیا تو وہ آنکھ لگنے پر سو گئی کہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور کائنات ہڑبڑا کر اٹھی۔ آنکھیں مسلتے سامنے دیکھا تو سکندر حیات تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بھاگنے والا تھا کہ سامنے سے 2 مرد آ گئے۔ ان دونوں نے کائنات اور سکندر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کائنات سکندر کی جانب دیکھتے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں، لیکن ان دونوں کو الگ الگ گاڑیوں میں ڈال دیا گیا۔ کائنات کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا جہاں اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ اس اندھیرے میں کبھی کبھی چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ جب بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل کر ظاہر ہو رہا تھا، اس نے غور سے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ کھڑکی بہت اوپر تھی اور 3 طرف دیواریں تھیں، سامنے سلاخیں تھیں۔ وہ جیل میں تھی؟ کیا وہ جیل میں تھی؟ کائنات کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جیل کیسے آئی؟ سکندر حیات کہاں تھا؟ وہ بھی جیل میں تھا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سلاخوں کے پیچھے سے آنکھیں پھاڑے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں پولیس نہیں، کوئی اور لوگ کھڑے تھے۔ وہ انٹیلیجنس کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ کائنات کا سانس رک گیا۔ وہ ان گنہگاروں میں شمار کر لی جائے گی اور پھر اسے ساری زندگی جیل میں گزارنی ہوگی، اور ظاہر ہے وہ جن لوگوں کے پاس تھی وہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ ان لوگوں نے کلب پر ریڈ کر کے کن لوگوں کو گرفتار کیا ہے؟ یہ سب خفیہ کام تھے۔ ان کا منظر عام پر آنا ناممکن تھا۔ کائنات سلاخوں سے لگتی نیچے بیٹھتی اور گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں وہاں گونج رہی تھیں۔ اس کی چچی سمجھے گی وہ بھاگ گئی ہے، نہ جانے لوگ کیا کیا باتیں کریں گے۔ وہ پاگل ہوتی بس روئے جا رہی تھی۔ کافی لڑکیاں جاگ گئی تھیں اور اس کے رونے پر بیزار ہو رہی تھی۔
वो पेशावर लड़कियां थीं, उन्हें वहां सारी जिंदगी पे रहना पड़ता तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कायनात कमजोर दिल की मासूम लड़की थी। सिकंदर हयात के अलावा वो किसी के पास नहीं गई थी। ए चुप कर, किसी लड़की की गौसे भरी आवाज गूंजी। वो चुप ना हुई तो किसी दूसरी लड़की ने उस पर हाथ उठाया तो इसका होंठ फट गया। वो जमीन पर सुकड़ी रोने लगी। अचानक सीटी बजी और कोई वर्दी में वहां आया। उसने कायनात के वजूद को अपनी बाहों में भरकर उठा लिया। उसका चेहरा मास्क में ढका हुआ था, कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। लड़कियां हैरत से कायनात को दूर जाते देखने लगी। वो टेंशन और मार से बेहोश हो गई थी। वो बेड पर लेटी थी जब उसकी आंख खुली। नर्स उसके सर पर खड़ी थी। वो मास्क वाला आदमी वहां खड़ा सर हिला रहा था। उसके वजूद पर वर्दी थी, और वो वर्दी जिसे आम लोग मोहब्बत करते हैं। वो मुस्कुराकर देखने लगी। आपको मालूम है सिकंदर हयात कहाँ है? उसने उस वर्दी वाले नौजवान से कहा। वो गैंगस्टर है, जहां होना चाहिए वहीं है, उसने कायनात को बगौर देखते हुए कहा तो वो सिसकी भरती उठ गई। वो बुरा इंसान नहीं है, अच्छा है। उसने मुझे अपने साथ 10 दिन रखा था। वो सर झुकाए नाखून खुरचते बोली। अच्छा कहाँ से हुआ जब आपको अपने साथ रखकर मतलब पूरा करता रहा। ये कहकर वो पलट गया। कायनात ने उदासी से सर तकिए पर डाल दिया। उसके बाद उसे 2 एहलकार अपने साथ ले गए और एक बड़े से वीआईपी कमरे में ले आए। वो हैरत से फटी आंखों से उस कमरे को देखने लगी जो उस क्वार्टर से थोड़ी दूर था। वो किंग साइज बेड को देखने लगी और सोफे पर कोने पर टिक कर बैठ गई। कोई वर्दी में कमरे में आया था। उसने जूते देखे, फिर चेहरा उठाकर देखा। वो मास्क उतार कर कायनात की तरफ आया तो वो हैरत से गंग खड़ी हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि सिकंदर हयात था। उसने हैरत से इसके सीने को छुआ। वो उसकी हैरत पर कुछ ना बोला, पहले उसे यकीन कर लेने का मौका दिया। ये तुम हो सिकंदर हयात? वो उसकी वर्दी और उसे देखकर हद से ज्यादा हैरान थी। हाँ, उसने अपनी असली अंदाज में जवाब दिया। कायनात अचानक से सब भुलाए उसके सीने से आ लगी। वो उसकी पूंछ से वर्दी मुट्ठी में भरे रो रही थी। मैं तुम्हें मिस कर रही थी। वो यूं कह रही थी जैसे वो 10 दिन नहीं 10 सालों से साथ थे। बैठ जाओ कायनात, उसने पहली बार इसका नाम लिया था। तुम इस केस से आजाद हो, उसने पंजों के बल इसके सामने बैठते हुए कहा। वो सोफे पर बैठी थी। उसे देखकर दिल कितना खुश था वो जानती भी नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो। वो अब भी बेयकीन थी। यकीन करने में वक्त नहीं लगेगा। जैसे पहले यकीन कर लिया था कि मैं गैंगस्टर हूं, वैसे अब ये भी यकीन कर लो कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। वो मुस्कुराकर कायनात की आंखों में देखते हुए बोला। मुझे रोज बेहोश क्यों करते थे? वो ये जानने के लिए बेताब थी कि वो उसे बेहोश करके क्या करता था। अपना काम, क्लब में गश्त लगाता था, लैपटॉप पर मेन रूम की वीडियोस देखता था। ये जानने की कोशिश करता था कितने गैंगस्टर्स इस क्लब से जुड़े हैं, वहां तक किस तरह छापा मारा जाए, वहां कैसे लोगों को कब्जे में लिया जाए। वो जेब में हाथ डालकर कुछ निकाल रहा था। उसने 1 इंच का पेपर निकाला। उसमें महलूल है। ये है जो मैं तुम्हारी गर्दन पर लगाता था। तुम्हारा पसीना इसे जज्ब करके तुम्हें बेहोश कर देता। वो मुतमईन अंदाज से बता रहा था। लेकिन एसी में मुझे पसीना कब आता था? वो हैरानी से पूछ रही थी। तो वो हल्का सा हंसा। मैं जैसे ही तुम्हारे करीब जाता था तुम्हें खौफ से पसीना आने लगता, इसीलिए हमेशा तुम्हारे साथ कोई हरकत करता था ताकि तुम्हें पसीना आए और मेरा काम आसान हो जाए। वो उसकी नाक दबाकर बोला। उस दिन शर्ट के बटन, वो लबों पर जबान फेरती पूछने लगी। वो जानबूझकर तोड़े थे ताकि तुम्हें यकीन हो कि मैं सारी रात इधर ही होता हूं। तुम्हारे नाखून भी खुद से गड़वाए थे। बड़े नाखून का मुझे फायदा हुआ था, उसने कायनात के पास से उठते हुए कहा। मैं अब घर कैसे जाऊंगी? उसने सिकंदर हयात की तमाम बात सुनकर सुकून का सांस लिया। वो ये सब जानकर कितना खुश हुई थी बता नहीं सकती थी। अब तुम लापता में शामिल हो। तुम चच्ची और बच्चियों से अब कभी नहीं मिल सकती। वो उसकी जानिब देकर संजीदा था, लेकिन वो परेशान हो गई थी। फिर वो कहाँ रहेगी ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन
तुम यहीं रहोगी? वो उसके चेहरे पर से सवाल उचक कर बोला तो हैरानी से उसे देखने लगी। विल यू मैरी मी? वो उसके सामने आकर खड़े हुए पूछ रहा था। उसकी चौड़े वजूद के आगे वो छुई मुई सी लग रही थी। सुबह सुबह का वो मंजर इतना दिलकश था कि कायनात ने दुआ की, अगर वो ख्वाब है तो वो इस ख्वाब से बिल्कुल जागना नहीं चाहती। तारीकी पर सूरज की किरणें गालिब आ रही थी। उसे यूं लग रहा था कायनात की तारीकी को सिकंदर हयात ने रोशन कर दिया था। वो नम आंखों से गर्दन उठाए उसे देख रही थी और वो आंखों में चमक लिए गर्दन झुकाए उसे देख रहा था। कायनात बिना कुछ जवाब दिए रोने लगी। तो मुझ पर कैसे यकीन कर सकते हो कि मैं पाकीज़ा हूं? वो गर्दन झुकाए रो रही थी। जिस दिन तुम वहां आई थी सीधा मैं तुम्हें ले आया, और भला क्या सबूत चाहिए मुझे कि तुम मेरे काबिल नहीं हो? रहा तो मैं भी वहां हूं, रोज लड़कियों को लेकर कमरे में आता था और फिर उनकी इंसल्ट करके भेज दिया करता था कि मुझ में कोई खास बात नहीं। क्लब वाले परेशान थे वो मुझे किस लड़की के जरिए रोके, और फिर उस दिन वो तुम्हें ले आए। मैं जानता था तुम वहां धोखे से लाई गई हो। तुम्हारी उड़ी रंगत, लरसते कदम सब कुछ वाज़ेह कर रहा था। मुझे तुम्हें बचाना चाहिए। वहां की बाकी लड़कियां वहां के माहौल की आदी थी। तुम एक दिन भी वो सब बर्दाश्त ना करती और अपने साथ कुछ कर लेती। इसीलिए मेरी निगाह तुम पर टिक गई और तुम्हारी मासूमियत ने मुझे पिघला दिया। मैं रोज उस वक्त का इंतजार करता था जब तुम्हें देखूंगा, और मैं उस वक्त हैरान हुआ जब तुम खुद से मेरे कमरे में आई। मुझे यूं लगा मैं कामयाब हो गया हूं, तुम मुझ पर एतबार करने लगी हो। मुझे तुमसे आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत होती गई। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामे बोल रहा था। कायनात ने रोते हुए उसके सीने में मुंह छुपा लिया। मैंने कौन सी नेकी की थी जिसका इनाम इस सूरत मिला है? वो उसके सीने पर हाथ रखे पूछ रही थी। मैं कब से खुद से यही सवाल कर रहा हूं, तुम मेरी कौन सी नेकी का अजर हो? मैं तुम्हारी मासूमियत तबाह होने नहीं दे सकता था कायनात, जिसका मैं पहली नजर में गर्विदा हुआ था। उसने मोहब्बत से उसके माथे पर लब रखे वो नजरें झुकाए खड़ी थी। यहां तुम्हारी जरूरत का हर सामान है, आराम से यहां रहो। वो मुस्कुराकर उसका चेहरा थपक रहा था। मुझे जवाब जल्द ही देना, फिर मेरा ट्रांसफर होना है। मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूं। वो जाते जाते पलटा, वो नजरें उठा भी ना सकी और वो उसकी कैफियत समझकर हंसा और पलट गया। कायनात उसके जाते ही कुशन में मुंह दिए गहरी सांसें भरने लगी। उसने सोचा भी नहीं था उसे सिकंदर हयात जैसा मर्द बिन मांगे मिल जाएगा। वो अलमारी देख रही थी। वहां कायनात के साइज के बहुत अच्छे कपड़े टंगे थे। उसने उनमें से एक सूट निकाल लिया और मुस्कुराकर शावर लेने चली गई। वापिस आई तो सिकंदर हयात कमरे में था। नाश्ता टेबल पर सजा रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया। वो टावल अपने गिर्द लपेटे वहां चली आई। मुझसे क्या छुपाना, सब देख चुका हूं। वो उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था तो वो रोहानसी हो गई। मैं? तुमने मुझे? वो बेहद हैरानी से सवाल पूछ रही थी कि सिकंदर बेसाख्ता हंस पड़ा। डोंट वरी, उस दिन बटन तोड़ने के अलावा कोई दूसरी हरकत तुम्हारी बेहोशी की हालत में नहीं की। उसने कायनात को इत्मीनान दिलाते कहा। वो नजरें नहीं उठा पा रही थी और सिकंदर हयात की नजरें बेलगाम हो रही थी। उसकी बोलती नजरों को कायनात बखूबी सुन रही थी। उसने थूक निगलकर टोस उठाकर मुंह में रखा। उसके होंठ पर मक्खन लग गया। सिकंदर हयात ने अंगूठे से हटाया। वो सांस रोके आधा टोस मुंह में रखे आधा बाहर निकाले उसे आंखें फाड़े देखने लगी। यहां मक्खन लग गया था। उसने वजाहत देते उसकी जानिब अंडा बढ़ाया। वो भूखी थी, मजे से खाती रही। शाम में उसे मुलाजमा ने आकर निकाह का जोड़ा दिया। उसके साथ एक चिट थी। अगर जवाब हाँ है तो ये निकाह का सूट पहन लेना, अगर ना है तो इसे वैसे ही छोड़ देना। उसने मुस्कुराकर सूट पहन लिया। वो हल्के से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिकंदर हयात कमरे में आया तो उसे देखकर मबहूत रह गया और कायनात उसे वर्दी में देखकर मुस्कुराई। वो बावर्दी सिकंदर हयात से निकाह करने वाली थी, जो उसका मुहाफिज होने के साथ साथ उस कौम का भी मुहाफिज था। इजाबो कबूल के बाद कायनात और सिकंदर हयात साथ बिठाए गए। उसके ऑफिसर्स बता रहे थे उसने कायनात को वहां से निकलवाने के लिए उनकी कितनी रिक्वेस्ट की थी।
وہ اسے مشکور نظروں سے دیکھتی اور پھر سکندر حیات کی ساری رات اسے چپ کرواتے گزری تھی، جو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رو دیتی تھی۔ وہ لمبی سانس بھر کر اس معصوم لڑکی کو گلے سے لگائے تھپکی دیتا رہا کہ بعض اوقات امید سے زیادہ کچھ مل جانے پر بھی انسان بے بس ہو ہی جاتا ہے، جیسے کائنات سکندر حیات کو پا کر محسوس کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔